day before yesterday, the number was $3.77 billion. And since there were, I think, 4 working days left, so we were expecting that the number would be about $4.3, $4.4 billion. I mean, that's a remarkable contraction. In fact, we are perfectly comfortable even if the imports are $5.5 billion. But what would happen is that from next month onwards, inshallah, the incoming dollars in Pakistan by way of exports and remittance will be more than the outgoing dollars from Pakistan by way of imports or some debt repayments, debt servicing, I should say. And because we will have more imports, we will have more inflow of dollars than outflow of dollars, we will inshallah then, therefore, not have the pressure on Pakistani rupee that exists today, and we will, as you will see, that Pakistani rupee will not be under pressure anymore. At that point, we will either be able to build reserves or, the rupee will appreciate, but that's a decision that, I leave to the short-term future, 2-3 weeks from now. Today, yesterday, for instance, I know that there was more inflow of dollars than outflow of dollars, but that was just one day. But we've actually controlled the situation quite a bit now, so that imports have really reduced in Pakistan, and inshallah now the export plus remittance, which is and remittance, think of remittance as export of labor, that export of labor and goods and goods now in Pakistan than exports. So we, after a few months of breather, these sets of policies will give us to this quarter, will institute policies that once again bring back growth in Pakistan, but an inclusive growth, and most importantly, a sustainable growth. Pakistan has not been able to have sustainable growth. We've seen Pakistan go bust every few years. Every time we go beyond north of 5% growth, we go bust. So we have to come up with a sustainable growth, and it turns out that the way to achieve sustainable growth is happily also an inclusive growth. And rather than getting the manufacturing sector, which imports a lot of machineries and then also raw materials, rather than growing the manufacturing sector, if we start growing by farming sector and the urban poor, hopefully. पंजाब में गवर्नर राज की समरी पर काम शुरू कर दिया है। पंजाब मेरे दाखिले पर पाबंदी लगी तो गवर्नर राज के लिए जवाज काफी होगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी सूरत हाल मजीद खराब हुई। इमरान खान ने दोबारा ऐसा कोई एडवेंचर किया तो 25 मई वाली एक्सरसाइज फिर होगी। पंजाब की पग चौधरी परवेज इलाही के सर सज गई। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग कलअदम करार। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बन गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने परवेज इलाही का बतौर वजीर आला का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नौमुंतखब वजीर आला से ओहदे का हल्फ लिया। आइन और कानून की पासदारी पर जजेस को खराज तहसीन पेश करता हूं। दबाव के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस कानून और आइन के साथ खड़े रहे। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। तहरीक इंसाफ का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। इमरान खान के भंगड़े मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। पीटीआई रहनुमाओं की कारकुनों को मुबारकबाद। मजीद खुशियों की भी नवीद सुना दी। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही आज इमरान खान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पंजाब में स्पीकर, काबीना और दीगर अहम तकरीरों के लिए मुशावरत होगी। सियासी और अवामी मसाइल पर डिलीवर करने के लिए टॉस भी तय किए जाएंगे। परवेज इलाही इस्लामाबाद से वापसी पर बाज़ाब्ता तौर पर दफ्तर का चार्ज संभालेंगे। पंजाब में हुकूमत साजी इमरान खान कल लाहौर का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से मुलाकात करेंगे। इमरान खान को पंजाब में हुकूमत साजी के अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत साजी से मुतल्लिक अहम फैसले भी करेंगे।
एक मिशन मुकम्मल को वजीर आजम की कुर्सी पर लेकर आएंगे। अब इस मिशन के लिए तन मन धन की बाजी लगाएंगे। मोनस सराई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर परवेज इलाही की हलबर्दारी के साथ साबिक वजीर आजम इमरान खान की तस्वीर भी शेयर कर दी, जहां वो 2018 में वजीर आजम की हल्फ ले रहे थे। स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए पीटीआई में जोड़ तोड़, बड़े बड़े नाम जेर गौर। शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे जैन कुरैशी और उस्मान बुजदार स्पीकरशिप के लिए मैदान में हैं। जराये के मुताबिक सप्तैन खान और मियां महमूद रशीद भी स्पीकरशिप की दौड़ में शामिल हैं, जबकि मियां असलम इकबाल के नाम पर भी गौर किया जा रहा है। हतमी मंजूरी इमरान खान देंगे। दो वोटों की हुकूमत के लिए वाहिद रास्ता नया इलेक्शन रह गया है। शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं इक़्तिदार हमजा का खत्म हुआ है और मुश्तिल फजल रहमान हो रहे हैं। नून लीग वाज़ेह तौर पर दो ग्रुपों में तकसीम होने जा रही है। एक इक़्तिदार से चिमटे रहने और दूसरा इलेक्शन में जाने का हामी है। पीडीएम का सरबराही इजलास शर्मिंदगी का अंबार होगा। इंटरबैंक में डॉलर बेलगाम, रुपया हल्कान। अमरीकी करेंसी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। डॉलर मजीद 3 रुपए 7 पैसे महंगा 236 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा, स्टॉक मार्केट में भी मंदी। डिफॉल्ट के खदशात खत्म हो चुके, रुपए पर दबाव 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं पाकिस्तान डॉलर की आमद जल्द ही आउटफ्लो से ज्यादा होगी और शरह मुबादला मुस्तहकम होगा। आईएमएफ से कर्ज की आमद हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगी। हेडलाइंस आप जान चुके। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 7 न्यूज़ एचडी। The Savvy School, पाकिस्तान का पहला 7-star school. The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open.